करनी पड़ रही है। इधर से पैसा आया उधर भेज दिया और बहुत छोटा सा हिस्सा। बट कंपेयर इट विद समबडी इन जगदलपुर और मे बी सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, जहां पर 25,000 इज अ बिग अमाउंट फॉर दैट पर्सन, राइट? एंड आई एम सेइंग ओनली अबाउट द फाइनेंसेस, बट दो हमारे यहाँ 2 गर्ल्स हॉस्टल है और 11 बॉयज हॉस्टल, राइट? सो इससे कितनी गड़बड़ हो रही है जरा समझिए। पहले तो लड़कों को समझ में ही आ रहा होगा क्या गड़बड़ हो रही है। जस्ट इमेजिन, आप किसी कॉर्पोरेट दुनिया में चले जाइए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के सबसे भूखे किस्म के एम्प्लॉयज होते हैं। And there are reasons for it. There are reasons. When I was in engineering college, there were 2 girls in the electrical department, one probably in mechanical. For us, deprived sections of civil, mechanical and electrical, हम लोगों को अगर कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हाय भी बोल देता था तो उसे हम 3 दिन तक गाते थे। But this is not unfair only to boys. It is unfair to the entire learning opportunities and entire learning ecosystem. I mean, I don't know why it is being said, and I'm not playing to gallery. Trust me, I'm not playing to gallery. I am not. I am saying bitter things. ये जो आपका कहना है कि नहीं जी सर ये तो प्यार नहीं है, ये तो फिजिकल अट्रैक्शन है। फिजिकल अट्रैक्शन में इतना बुरा क्या है दोस्त? Tell me, honestly. And the love you said has to be platonic, has to be pure. I don't buy that argument either. My understanding is very clear. If, and it's a big if consenting adults are in any kind of relationship, it's none of your business. Keep your mouth shut. Simple. But, and it's a big but. अगर आप बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, थोड़ा सा राजस्थान भी गिन लीजिए, तो भाई लोगों, this freedom about having free relationship with the consent extend to every member of your family. It extends to your sisters, it extends to your daughters, and you have bloody no business asking her, ab tak kahan thi? On the basis of that, I can tell you कि अगर आप इस लाइन को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हैं कि you have to always draw a line. I'm not talking about the school students. I'm talking about adults. So let us be very clear. ठीक है? मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्कूल के बच्चों को लगातार गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और कम से कम जब तक वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं आए तब तक दे शुड लुक फॉर गाइडेंस. देयर इज नो हार्म इन. लेकिन इफ यू आर एन एडल्ट, तब जितनी ताकत आपको इस बाउंड्री को बनाने और बचाने में लगेगी, उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी दूसरी जगह. जो बहुत बार बच्चे कहते हैं ना कि सर वहां गए थे, इश्क में पड़ गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ. इसकी वजह इश्क में पड़ना नहीं थी. इसकी वजह ये जो आपने बहुत तेज एक लाइन खींच रखी थी, एक सीमा बांध रखी थी, बांध तैयार कर रखा था, वह थी. अगर एक समाज में वयस्क उम्र के स्त्री और पुरुष सहज तरीके से सहज संबंधों में नहीं रह पाते, तो वह समाज बहुत रुग्ण समाज है. It's a diseased society, and we need to work
to make this society disease free. I mean, in my own country, in our own city, there are many hostels. For example, in many important universities, where the hostels are not gendered. Hostels are not gendered. You are a grown-up person. Room A is given to a boy. Room B can be given to a girl in the same hostel. And you can be respectful to each other. आपको ये बता दिया था कोटा फैक्ट्री में, उस कोटा का जो इकोसिस्टम है उसने बता दिया था कि you have independent directors in the board and things like that. So regulations are easy to find out. You can find out in the act itself, the Companies Act. But yes, the actual question is far more important than just a few rules that the government has put for compliances. It has to do with the fact. सवाल ये है कि जब ये बच्चियां, ये लड़कियां अपने कॉर्पोरेट जिंदगी को शुरू करेंगी तो they will be facing something called glass ceiling, also similar things like glass cliff or things like that. देखिए, पहली बार, और इसका उत्तर कुछ हद तक मैंने पहले भी दिया है, पहली बार वे जो महसूस करेंगी, वो जो फेस करेंगी, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं. That is the first thing they need to understand. आपको बोर्ड रूम्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, आपको अच्छी पोजीशंस, अच्छे एवेन्यूज नहीं मिल रहे हैं, आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं. तो सबसे पहले तो दे नीड टू कम आउट ऑफ द गेट. एक छोटी सी बात से आपको समझ में आ जाएगा. वे लोग जो आईएएस बनना चाहते हैं, अधिकांश लोगों को पता है कि वो आईएएस जो है वो केवल डीएम बनने के लिए बनना चाहते हैं. ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि अल्टीमेट पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. 12 साल की फील्ड जॉब के बाद एक आईएएस ग्लोरीफाइड क्लर्क से ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है ना, जैसे ही वो हेडक्वार्टर में पहुंचा उसके बाद आप सही, उसकी टेबल का साइज कम ज्यादा होता जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एक्चुअल जॉब क्या है? आईएएस. अगर आप पिछले कुछ सालों का डाटा देखें, you realize that in the final list, there are around 30% women clearing the examination. ये कोई बहुत सुखद चीज नहीं है, लेकिन बहुत बुरी. It is almost always a social influence. Always. किस लिए? पावर के लिए, भौकाल जिसे आपने कहा, ठीक है ना, पावर भौकाल के लिए, या फिर कभी-कभी करप्शन के लिए. ये कुल मिला के यूजुअली रीजन होता है. आपके इंडिपेंडेंट चॉइस के सेंस में ये नहीं होता है. नाउ कमिंग टू द अर्ली थिंग, 24 इयर्स का मतलब हुआ कि यू आर गिविंग 3 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन. ठीक है, 2 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, विच इज फाइन. ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 23 में बनिए, 24 में बनिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में बनिए ना. एंड यू नीड में उस प्रकार अगर घूम रही है, जैसे घूमे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. अगर वो चित्र मैं आपके पेरेंट्स को भेज दूं और उनको प्रॉब्लम ना हो, तो आपको जैसे घूमना है वैसे घूमिए.